ਚੰਗੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀਏ। ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਆਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੈਸੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਰਚਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 12 ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਤੀਜਾ ਖੁਦ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਸਤਜੁਗ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਚਰਨ ਤ੍ਰਿਤ ਤੀਨ ਰਹਾਏ, ਦੁਆਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਰਹਿ ਕਲਿਕ ਚਰਨ ਟਿਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ 2 ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ 3 ਪੈਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਰਨ ਤੇ ਟਿਕਾ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਿਨ ਬਿਲੰਬ ਨ ਥਿਰਤਾ ਪਾਈ। ਰੱਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਕ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਰਕ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਾਗਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਨਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਨਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰ। ਰੱਬ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਘਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਖਹੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਸਾਇਰਾ ਨਦਵਾ ਬਹੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਤਰਵਨਾ ਫਲ ਸਫਲ ਫਲੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਜੀ ਜਨਤਨ ਗਿਣਤ ਫਿਰੰਦੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਭਾਰ ਕਾਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਰੇ ਭੋਏ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਖਾਜ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ, ਪਰ ਜਹ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਕੂੜ ਕੋ ਸਤ ਮੁਖੋਂ ਆਲਾਈ,
चेले साज बजाएंदे, नचन गुरु बहुत विद भाई, सेवक बैठन घरां विच, गुर उठ घड़ी तनाड़े जाई, इस्तरी पुरख है दाम हित, भावें आऊं किथाऊं जाई, ते मुकदी गल बरते पाप सब जग माही। भाई गुरदास जी ने कहा लोकां दे अंदर धर्म नहीं रहा। उस वक्त राजे रिश्वती हो गए, काजी रिश्वत लैके हक पाउण लग पे, राजे उल्टे बाड़ नूं जिवें खेत नूं बाड़ खाण लग जाए, ऐदां राजे प्रजा दा लहू चूसण लग पए। इस्त्री दे पुरख पति पत्नी दा संबंध सिर्फ पैसे दा रह गया, लोकां विचों शर्म ते धर्म अलोप हो गई। उदों धरती गरकण ते आ गई। श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने फिर बयान किया खुद हालात किहो जैसे। बादशाह कहंदे राजे शी मुकद्दम कुत्ते, जायज गायन बैठे सुते, चक्कर नंदा पायन घाओ, रत पित कुत्तेओ चट जाओ। हालात किस तरह दे सन, काती कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नहावे जियां धाए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने ओजाड़े का बंध। जे तुसी 550 साल जो हालात पहला सन अज कदे कंपेयर करके वेखियो, तुसी कंब जाओगे। हालात उसे तरह दे फिर बन लग पे। अज भी ये सब कुछ चलदा है। रिश्वत दे दिओ, सच जेड़ा वो जेल विच बंद हो जांदा, झूठ नूं आजाद कर दिंदा। रिश्वत अज भी चलदी है। करोड़ां रुपया लेके जज अपना फैसला बदल दिंदे। राजे प्रजा दा लहू चूस रहे। साध संगत हालात उसे तरह दे बन गए। अगे चेलियां नूं गुरु कोल पढ़न जाना पैंदा सी, हुण गुरु चेलियां नूं पढ़ाउण जांदे ने। अज तुसी वेखो, तुसी पैसा खर्चो, ट्यूशन पढ़ाउण वाले तुहाडे घर पढ़ाउण आ जाण, कोई अदब सत्कार नहीं। साध संगत अगे सिखण वाले गुरुआं कोल जांदे सन, हुण सिखाउण वाले चेलियां नूं जाके सिखाउंदे। हुण टेलीविजन ते वेखो की चलदा, चेले साज वजाउंदे ने, सिखाउण वाले गुरु उन्हां उत्ते नच रहे। साध संगत इत्थे ही बस नहीं, इस्तरी पुरख है दाम हित। जे 550 साल पहला ही हालात सी, अज भी उही हालात दोबारा घूम के सामने आ रहे ने। 15 साल पहला लोकां बड़ा रौला पाया, कहंदे ओ धीआं दाज दी बली चढ़ रहीआं, धीआं दाज दी बली चढ़ रहीआं ने। किते स्टोव फट गया, किते गैस फट गया, दाज मंगदे ने जी, दाज करके धी नूं साड़ दित्ता, दाज करके फाहा देता, दाज करके दी फलानियां ने इस तरह कर। साडे देश विच कानून बन गया, एक डोरी दी धारा जी, जिहड़ा डोली दा केस पैंदा दूजे विआह तो 7 साल दे अंदर अंदर लड़की वाले कदे भी लड़के वाले परिवार उत्ते डोली दा केस पा सकदे। ये दाज मंगदे ने, परिवार दे 3-3 4-4 जीआं नूं सजावां हो गई। साध संगत ते ठीक सी, पर उस आड़ दे अंदर कई बंदियां ने अपने बैर कड्डे। गल कुछ होर सी, लड़के वाले परिवार नूं, भैणां ते मां नूं, सस नूं सब को जेल करा दित्ता। साध संगत 15 साल पहला लड़के वाले दाज मंगदे सी, दाज नूं लोक लानत कहण लग पए। हिंदुस्तान में डोली दा संविधान कानून बनाउणा पिया। अज अपने मनां झात मारियो, हालात बदले नहीं। अज धीआं नूं पढ़ा दित्ता है, पर साध संगत हालात घूम के फिर उत्थे आ गए। अज दे हालात वेखो, हुण लड़के वाले दाज नहीं मंगदे, हुण लड़कियां वाले मंगदे। हुण मुंडे वाले दाज नहीं, हुण धीआं वाले दाज मंग रहे। साडी लड़की ने आईएलएस कीती है, पैसा दिओ तुहाडे लड़के नूं बाहर ले जांदे। 20-20 लाख रुपए च सौदा हो रहा, 40-40 लाख रुपए च दबाबे में सौदे हो रहे हैं। साध संगत हालात फिर उत्थे शर्म धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान बिल। इसलिए आ समागमां दी जरूरत है। ये कोई फार्मैलिटी विखावा नहीं भी अखबारां च देना, ये समागम करने चाहिए ने। क्यों? किते गुरु की कृपा नजर वरते, साडे अंदर शर्म ते धर्म पैदा हो जाए। साध संगत असी लोग व्यापारी ना बनीए, अपनियां धीआं पुत्तां दे सौदे ना करो। जे कोई ब्याह शादी करनी पहला होना चाहिए। एक सेवादार है जी साडा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विच, उन्हें अपनी ओदी बच्ची आईएलएस कर रही, वो मैनूं कहना भाई साहब जी रिश्ता मिलदा है। मैं उन्होंने कहा देख ये ठीक है, मैनूं पता तेरे कोल 1.5 किला जमीन है, तेरे कोल बहुता पैसा नहीं, पर जेड़ा सज्जन रिश्ता कर रहा उन्होंने पहला पुछ मेरी लड़की दी आईएलएस करके ये रिश्ता ना करी। आईएलएस क्लियर ना भी होवे तां भी ये रिश्ता रखना पएगा। आईएलएस करके जे बच्चा बाहर चला जाए, कल नूं किते लड़के वाले छड्ड ना देण। साध संगत वो बंदे ने वैसे अणख रखाई, तनख्वाह ते ओदी 10-12 हज़ार ही, उन्हें टनका के गल कही मेरी बच्ची दी आईएलएस करके 6, 6.5, 7 बैंड ना आए,
रिश्ता तां भी रखना पेगा। जे बहन आने तो बाद बच्ची व्याही गई, खर्चा जिन्ना मेरे को मैं भी करा, ये नहीं कि लड़के वाले कर। उन्हें कहा जिन्ना मेरे को ब्याह सादा कर लांगे, 2-4 लाख रुपये जो ब्याह ते लाने वो मैं बच्ची की फीस भर दांगा, बाकी तुसी भर दो, पर ब्याह पक्का करना है। गुरु ग्रंथ साहब के दुआले 4 लावां लैण तो बाद मैं झूठा ब्याह नहीं करना। मैं सीधा गुरु ग्रंथ साहब के दर का खाता है। शाबाश उस सेवादार दे अगों सज्जन लड़के वाले भी साथ संगत वाके दलेर मर्द निकले। उन्हें वो रिश्ता पक्का किया। उन्हें कहा जी जे बैंड ना आए, लड़की नूं 6.5 बैंड ना होए, रिश्ता पक्का रहे। वो बच्ची दे बैंड घट गए, पर लड़के वाले ने हुण दोबारा फीस भरी, वो बच्ची दे हुण बैंड आए ने, वो बच्ची भी बाहर जाएगी, ओदे नाल ब्याह लड़का भी बाहर जाएगा। कहण तो भाव कम से कम आपां थोड़ा बहुता धर्म रखिए, व्यापार ना करो। श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने इस धरती ते प्रकाश लेना पिया। क्यों? स्त्री पुरख है दाम हित, भावें आऊं किथाऊं जाई, वरत्या पाप सबस जग माही। फिर धरती तो पुकार उठी, रब जी कोई ऐसा कलो जेड़ा सानू डिगिया धक्किया नू नीचा नू भी गल ना ला सके। धरती ने पुकार की धरती कोई माता है जेड़ी कोई शरीर धार के पुकार कर रही है? नहीं, धरती कोई शरीरक माता नहीं जेदियां कोई 5 या 10 बावां होण। नहीं, धरती नू गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने माता इसलिए कहा क्योंकि सब कुछ धरती तो उपजदा है। साध संगत पीण वास्ते पानी धरती दिंदी, खाण वास्ते अनाज धरती तो मिलता है। साडी उपजीविका लई बेअंत चीजां धरती चों पैदा होंदियां ने। इसलिए परवरिश करने वाली मां धरती है, जन्म देने वाली मां कोई शरीरक माता है, ते साध संगत परवरिश करने वाली, पैदा करने वाली मां आपां मां प्यो पुत हां जिहड़े शरीर, पर पैदाइश तो बाद परवरिश करने वाली मां धरती है। इसलिए महाराज ने कह दी संभाल ते सत्कार कर, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। फिर धरती तो जिहड़ी पुकार उठी हो किस प्रिंसिपल गंगा सिंह होरा एक सब्जेक्ट लिखे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਉੱਠੀ? ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਤ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਗੁਣਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੀ ਪਾਪ ਸੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਅਦਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ FRI ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚੱਕਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਆਪ ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਪਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਪਦਰ ਰਾਵਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭੋਗ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਫਿਲਮਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਭੋਗ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ,
सीने में तीर वज्या, भगती करने वाला ऋषि तड़फ तड़फ के मर रहा सी। उन्हें मरद्या मरद्या कहा, हे रब जी तेरी भगती करनी जे पाप है, फिर इस धरती ते कोई ऐसा कल जेड़ा भगती करने वालियां नूं गल ना ला सके। त्रेते तो बाद द्वापर आउंदा है, द्वापर विच पाप होर वध गए। द्वापर विच पाप क्यों वधे? द्वापर विच उस वक्त दे अवतार श्री कृष्ण मौजूद ने। इतिहास तुसीं उन्हां दी हिस्ट्री जानदे हो। पंज पांडव, पंजां पांडवां दा वड्डा भरा है युधिष्ठिर। कृष्ण 24 घंटे नाल रहिंदे। युधिष्ठिर नूं उन्हां दे ग्रंथां विच धर्म पुत्र लिखे। साध संगत पंजे पांडव जूहा खेडण बह गए। जूहा खेडण तां आम बंदा बह जाए, ओदी दुनिया विच नरादरी हुंदी, पर जिन्हों लोग धर्म पुत्र कहते होण ओ जूहा खेडण बह जाए, ये कित्थों दा धर्म? जूहा खेडदियां खेडदियां जमीन हार जानी अलग गल सी, जायदाद हारनी अलग चीज है, पैसा हार जाना अलग गल है, राज भाग हार जाना अलग गल सी, पर इस तो बड़ा पाप होर की होना सी? धर्म पुत्र जूहा खेडदियां खेडदियां पंज पांडव अपनी घर दी धर्म पत्नी नूं जूहे विच हार दिंदा। जिथे अपनी धर्म पत्नी जूहे विच लाउण लग जाण, ये पाप नहीं ते होर की। पाप इत्थे नहीं रुकिया। दुशासन ने हारी हुई द्रौपदी नूं बालां तो खिंच के भरी सभा च लिआंदा। साध संगत उस सभा विच धार्मिक गुरु बैठे सन। विद्या पढ़ाउण वाला कृपाचार्य, शास्त्र विद्या सिखाउण वाला द्रोणाचार्य, ग्रंथां दा ज्ञान ते गुर दक्षिणा देण वाला, गुर दीक्षा देण वाला गुरु विश्वामित्र, धार्मिक गुरु बैठे होण। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्णाचार्य, विश्वामित्र, भरी सभा धार्मिक गुरुआं दी। सारे धार्मिक गुरुआं दे सामने उस द्रौपदी नूं केसां तो पकड़ के खिंच के लिआंदा गया। इत्थे ही बस नहीं, इतिहास कहंदा दुशासन ने दुर्योधन दे कहण उत्ते ओहदे कपड़े लाउणे शुरू कर दित्ते। जदों ओहदा चीर हरण कीता, ओहदे तन दे वस्त्र लाउण लग पए। ओहने सब धार्मिक गुरुआं वल वेखिया, चिट्टियां दाड़ियां, बुजुर्ग शरीर, गुरुआं दीयां नजरां झुक गईयां, जुबान सीधी गई। द्रौपदी ने दुहकड़ा मार के कहा, ओ धर्म गरक गया, जे धार्मिक गुरुआं ने नहीं बोलना हुण कौन बोले? साध संगत ये ठीक है, रब नूं प्रगट होकर लाज रखनी पई, पर उदों अकाल पुरख रब ने फैसला किया। हुण द्वापर कलयुग में तब्दील हो गया। इस धरती उत्तों फिर एक पुकार उठी। कलयुग दे अंदर एक गरीब सज्जन घर विच बह के कपड़े बुनदा है। कपड़ा बुनदियां बुनदियां रब दा नाम जपदा। लोग उहनूं अखौती शूद्र जुलाहा कहंदे ने। जुलाहा अपने घर विच रात भवानिया ने शिकायत की, सिकंदर लोधी नाम जपण दा अधिकार नहीं, जुलाहियां दा लड़का नाम जपदा, नाम ही नहीं जप के बंदे सारी सारी रात सत्संग होंदा रहिंदा। जुलाहियां नूं सत्संग दा कोई अधिकार नहीं। सिकंदर लोधी ने गिरफ्तार करा, संगला नाल बन के पानी में सुट्टिया। जदों डुबण लगे रब नूं धाह मार के कहा, रब्बा जुलाहे इन्ने माड़े, जुलाहियां नूं नाम जपण दा अधिकार क्यों नहीं? रब ने लाज रखी। पानी दीयां लहरां ने संगल तोड़ के रख। दुनिया दे इतिहास विच पहली बार होया। लोहे नूं लोहा वड़दा सैकड़े बार देखिया, पर पानी लोहे नूं वड़दे पहली बार होया। गंग गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर, मन न डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहो समाए, फिर घटना घटी गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर। मृगशाला पर बैठे कबीर पानी में तर गया, रौला पे। सिकंदर लोधी ने हाथी अगे सद्या, हाथी ने पैर न रखा। साध संगत उदण बाबे कबीर ने रब नूं जरूर किया, रब जी कोई ऐसा कल जेड़ा सानू नीमियां नूं भी गल ना ला सके। असीं जुलाहियां दे घर जन्म लिया, लोग शूद्र कह के दुर कर दे, पर उन्हें अपनी जात नूं माड़ा नहीं कहा। माफ करियो, बहुते लोग साध संगत अपनी जात तो उसे जात में जन्म लेके जात तो नफरत करना, दूजियां दे अगे जात लुकाउण, वड्डियां जातां वाले नफरत करन अलग गल है। खुद बंदे अपनी जात नाल ही नफरत करन, जात लुको देणगे। बाबे कबीर ने कहा, मैं अपनी जात नहीं लुकाऊंगा, मैनू जुलाहा करके नफरत कर दे ते अपनी जात तो मैं बलिहार जानना। लोगों
क्यों जे मैं जुलाहियां दे घर जन्म ना लैंदा ये जात बेईमानी मैनू दुरकार दे ना मेरी नरादरी ना कर दे तां मेरी सुरत कदे रब नाल नहीं सी जुड़नी जुलाहा करके मैनू रब उन्हां अपनी जात तो फिर बलिहार होके कहा कबीर मेरी जात का सबको हंसने हार बलिहारी इस जात का जे जप्यो सिरजनहार कहंदे मैं बलिहार अपनी जात जेदे करके मैनू रब दा नाम चित्या साध संगत कई बार नरादरी बंदे नू रब नाल जोड़ दिंदी बाशर्त ओ नरादरी होण तो बाद लोकां नाल बदला ना लवे ओ सीधा रब नाल जुड़दा दुनिया दा दुरकारिया बंदा निरंकार नू मिल जांदा है जे ओ लोकां तो बदला ना ले ये तुहाडे इतिहास विच है गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच एक भगत दा जिक्र ओदी बाणी नहीं पर ओदा जिक्र कीता महा जे ध्रुव नू ओदी मतरेई मां थप्पड़ मार के ना उठाउंदी राजे दी गोद कि जे तू इस जगह ते बैठा सी मेरी कुख तो जलना मतरेई ने ध्रुव नू दुरकार दिता ते ध्रुव दी जन्म देण वाली मां ने कहा बेटा मैं सीता रानी पर नौकरानी पता क्यों रब दी भगती नहीं की मां फिर ओ सुख किवें मिले आख्या बेटा रब दी भगती कर जे उदन ओ मतरेई मां ना दुरकार दी ते ध्रुव भगती ना करदा अज ध्रुव ने कोई राजा बन के मर जाना सी ध्रुव दा नाम नहीं सी रहना दुनिया विच जे अज ध्रुव नू भगत कह के सम्मान मिलदा है साध संगत इस वास्ते मिलदा है क्योंकि उन्हें भगती कीती है किसी ने दुरकारिया वो दुरकारिया होया निरंकार नाल सतगुरु बाणी अंदर उदा जिक्र कीता जदों भगती दी प्रेरणा करनगे फिर कहणगे राम जपो जी ऐसे ऐसे पढ़ो जिहड़ी बाणी याद है नाल पढ़िया करो राम जपो जी ऐसे ऐसे रूप प्रहलाद जपयो हर जैसे इत्थे बस कपड़े सीण वाले एक शिंबे साध संगत भगती करदे नाम जपदे दोष कोई दिल विच आए रब दे मंदिर ते जाए पौड़ियां चढ़िया ते जात मानी ब्राह्मणा ने पौड़ियां तो धक्के मार के सुने खिच्चा तू कंबली खिच ले धक्के मार के कहा तू शिंबे शिंबियां नू मंदिर विच आउण दा कोई अधिकार साध संगत जिदन धक्के मार के हजारां लोकां विच नरादरी कीती उदन बाबा नाम दे मंदिर दे पिछे बैठ के रब नाल प्यार विच रोण लग रब नू की किया जदों बाबे नामदेव नू धक्का मारे हस्त खेल तेरे देहरे आया भगत कर नामा पकड़ोठ रब नू फिर अड़ंबा दे के कहा हिंदड़ी जात मेरी जात मराया शिपे के जन्म काहे रब्बा जे शिपे इन्ने ही माड़े ने फिर शिपियां नू पैदा क्यों मैनू शिपियां दे घर जन्म ही क्यों दिता है कोई ऐसा कल जेड़ा सानू शिपियां नू भी गल नाल लावे तां कलयुग दे अंदर श्री गुरु नानक साहिब महाराज नू प्रकाश लेना पिया जुत्तियां गंढदे बाबे रविदास नू लोग प्रकार दे रहे जिदन रविदास ने रब नू कहा कोई ऐसा कल जेड़ा नीवियां नू भी ऊंचा कर सके धन गुरु नानक साहिब महाराज नू प्रकाश साध संगत फिर पातशाह ने कल्ला कहा नहीं प्रैक्टिकल शुरू की जेड़े नगर राय भोए दी तलवंडी विच प्रकाश होया ना गुरु नानक साहिब पातशाह ने सब तो पहली मित्रता डूम मरासी भाई मर्दाने नाल पिंड विच रौला पे खत्तरियां दा लड़का नानक मरासियां दे जंदा मर्दाने नू दोस्त बना लिया पूरे पिंड विच रौला पैण लग पिया लोग गल्लां करदे ने इन्नी उच्ची जात दा पटवारियां दा बेदियां दा लड़का नानक ये जाके डूम मरासियां दे घर खाना खांदा है एक ने रौला पाया ओ रोटी खांदा ही नहीं मैं ते नानक नू मर्दाने दी थाली विचों खांदा कल्ला रोटी नहीं खांदा मरासी डूम मरासियां दी थाली विचों झूठा खांदा है और पातशाह ने उसे दिन ऐलान करके कहा नीचा अंदर नीच जात नीची हूं अत नीच नानक तेन साथ वड्डियां जित नीच संभालियां तिथे नजर तेरी जदों महाराज भाई मर्दानी नू लेके तुरे मलक भागो वर्गे अमीर बंदियां ने जग लाया पर मेरा गुरु नानक जाके तरखाना दे घर भाई लालो दे घर बैठा
3 दिन श्री गुरु नानक साहब महाराज भाई लालो दे घर पोदरे दा विआह प्रशादा छक पूरे अहमदाबाद विच रौला पै गया। गुरु नानक 3 दिन हो गए लालो दे घर बैठे पोदरे दा विआह ते छक लिया। मलक भागो दे पूरे खान नहीं गए। बादशाह ने मालक भागो नूं संबोधन करके कहा तैनूं लोकां दा हक मार के तेरे पूड़िया विच भी सानू रत नजर आउंदी। हक पराया नानका ओ सुअर उस गाए गुर पीर हम तां भरे जा मुर्दार ना खाए। ते नाल बादशाह ने कहा भागो मलिक एक गल सुन, तेरे पूड़िया विच गरीब लोकां दी रत नजर आउंदी है ते भाई लालो दे कोदरे दे प्रशादे विचों सानू दुध अमृत नजर आउंदा है। पता जे क्यों? ओदी 10 नोहां दी किरत। बादशाह ने लालो नूं मार फिर एक गल उदण भाई लालो जी दे घर बह के कहंदे भाई लालो जेड़ा मान द्वापर विच नहीं मिलिया ओ मान तैनूं अज महाराज द्वापर विच केड़ा मान नहीं मिलिया। हजूर ने कहा द्वापर अंदर भी द्वापर दा अवतार श्री कृष्ण दिल्ली हस्तिनापुर दुर्योधन दा महल छड्ड के बिदर दी कुल्ली विच चलिया जा। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी वजे बिदर दी कुल्ली विच रात रहे घड़े दा पानी पीता अलूना साग खाता। अगले दिन दुर्योधन ने पूछा श्री कृष्ण तुसी साडे रिश्तेदार हो नाले द्वापर दे अवतार हो बिदर दी कुल्ली विच क्यों ठहरे? साडे घर दे पूरे खीर भोजन छड्ड के तुसी बिदर दे घर लूना साग खादा। उदन कृष्ण ने एक गल कही कहंदे तेरे महलां दी खीर ते बिदर दी कुल्ली दा अलूना साग सानू एक बराबर है। तेरे महलां दा दुध ते बिदर दी कुल्ली विच पीता पानी सानू एक बराबर है। खीर समान साग में पाया उत्थे शब्द समान वरते खीर समान साग में पाया गुण गावत रहण बेहनी ता साध संगत ए गल उस वक्त श्री कृष्ण ने कह दी तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर में मन। एदा मतलब दुर्योधन उच्चे अमीर राजे दे घर दा दुध गरीब किरती दे घर दा पानी बराबर। राजे दे घर दी खीर ते गरीब दे घर दा लूना साग एक बराबर। पर साध संगत एदा मतलब अमीर गरीब दी भगती दे बराबर हो सकदा। एक गरीब बंदे दे 10 दमड़े हो ते साध संगत अमीर बंदा 10 लाख जमा करा दे एदा मतलब वो गरीब दी भगती दे बराबर हो जाए। नहीं ये गल गुरमत विच नहीं। जदों उस कलयुग दे अंदर श्री गुरु नानक साहब महाराज आए बादशाह ने इस गल नूं रद्द कर हजूर ने कहा अमीर बेईमान बंदे दा करोड़ां रुपया होवे ते गरीब 10 नोहां दी किरत वाले दी एक कोडी होवे गुरु नानक दे घर विच कोडियां वाला पूजिया जाएगा करोड़ां वाले नूं पीछे पड़ इतना बड़ा मान दिता है। ये प्रैक्टिकली मान सी अज सानू ओ चीज नूं संभालण दी लोड़ है। इतिहास विच एक साखी बड़ी प्यारी है मैं सिर्फ तुहाडा ध्यान दिवाउणा। गुरु अर्जन देव महाराज दीवान समाप्त हुंदा ते बोल के कहंदे ने भाई गुरदास कोई मत्था टेकण तो बंदा रहिंदा बोल के कहो जिने मत्था टेकणों टेक ले। अज पहली बार बोलना पिया सी कोई सिख आया ओदे हाथ विच एक कौडी सी जदों मत्था टेकण लगा उन्हें वेख्या गुरु अर्जन देव महाराज दे चरनां विच कीमती सौगातां पई कीमती दुशाले पैसे धन मेरी कौडी दी की कीमत। मत्था टेकण लगे मन विच लाज आ गया जी ये साडी मानसिकता है। तुसीं कदे गुरुद्वारे आपां हुण भी मत्था टेकिया जेड़े बंदे को नोट थोड़ा वड्डा जां कोरा होवे वो पिछों खोल के लिआउंदा ते जेदे कोल छोटा पैसा होवे माफ करियो हाथ घुट के इस तरह हौली देनी रखदा ओदी साडी मानसिकता है। जे नोट वड्डा होवे ते दूरों खोल लईदा है ते नोट छोटा होवे फिर इंज रख दईदा हाथ बंद करके क्यों किसी नूं पता ना लगे। जदों सिख मत्था टेकण लगा उन्हें कौडी हाथ विच ही घुट लई मत्था टेक के खाली बह गया पीछे। गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा कोई कीमती भेटा लिया उन्हें मत्था नहीं टेकिया आवाज दिओ। एक बार आवाजा दिता 2 बार भाई गुरदास जी ने कहा ना कोई उठ्या ते आख्या महाराज जापदा सारियां ने मत्था टेक लिया। गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा नहीं भाई गुरदास कोई बड़ी कीमती भेटा लिया पर मत्था नहीं जे उन्हें टेकिया। उन्हें भेटा चढ़ाई नहीं उन्हें गुरु नानक दे घर विच भेटा नहीं दित्ती। ते साध संगत जदों इस तरह होया गुरु अर्जन देव महाराज आप उठ खलोते। बादशाह ने कहा भेटा कीमती है जापदा खुद मंगनी पैनी जाए। सारी संगत वेखण लग पई अमीर बंदे सिर घुमा के वेखण लग पे कितनी कीमती भेट
गुरु अर्जन देव महाराज उठ के सब तो पिछे चले गए। जिथे वो गरीब सिख सिर झुका के बैठे, ओनू कोई पता नहीं मेरे कोल गुरु अर्जन साहब आए ने। पातशाह ने कोल जाके इस तरह झोली अड्ड के कहा, गुरु के सिख जी इन्नी कीमती भेटा लियाए हो, लुको के क्यों रखी है? गुरु अर्जन देव की झोली विच पा दे। जदों सिख ने उपर मुंह चुकया, अंदरों विराग नाल भुब निकल गई। हाथ विच पकड़ी हुई कौडी, चार सपेरे वेखदे अखां विराग नाल भर गई। दोवां हत्थां नाल कौडी गुरु अर्जन साहब की झोली विच पा दित्ती। कदे जमाना सी जदों कौडियां चलदियां सन। धन गुरु अर्जन देव महाराज ने वो कीमती भेटा अपनी झोली विच पाई। आख्या, भाई गुरदास, एक करोड़ां नालों वध कीमती है, इहनूं साम के रखो। वेखण वाली संगत हैरान हो गई। महाराज, असीं इन्नी भेटा चढ़ाई, कदे साडी भेटा ते हथ नहीं लाया। अज एक किसी की चढ़ाई कौडी नूं इन्ना मान, ये सब कुछ वेख के भाई गुरदास जी नूं लिखना पै गया। सिखा भावना नाल आई, तू एक कदम होना, गुरु करोड़ों कदम अगे हुंदा है। सिखा भावना नाल चढ़ाई, तू कौडी चढ़ाउना, गुरु तेनू करोड़ों दे सकदा है। चरण शरण गुर एक पिंडा जाए चल, सतगुर कोट पिंडा आगे हुए लेत है। भावनी भगत भाए कौडी अगर भाग रखे, ताहि गुर सर्ब निधान दान देत है। इहो गल गुरु नानक साहब महाराज ने पहले जामे विच कहने, भाई लालो, द्वापर विच फर्क होया। एक भगती करन वाले दे घर दा पानी, अमीर बेईमान बंदे दे घर दा दुध एक बराबर किया गया। भगती करन वाले दा लूणा साग, अमीर बेईमान बंदे दे घर दी खीर एक बराबर कही गई। पर अज वो फर्क नहीं करांगे। अज भाई लालो तेनू मान देने, तेरे घर दा कोतरे दा विआह प्रशादा सानू अमृत वर्गा दुध लगे। ते साध संगत पातशाह ने कहा, मलक भागो, तेरे घर दे पूरे लोकां दी रत दे बराबर है। बिल्कुल बराबरता नहीं देती। तू अमीर है, तेरे पूरे ते ओदे घर दा लूणा साग नहीं। अज पातशाह ने कल्ला फिर बोलण विच ही नहीं कही। कदे इतिहास पढ़ियो जी द्वापर दा, ओदे विच विदर नूं मान ते दित्ता, पर पूरी गीता 18 अध्याय पढ़ के देखो, विदर दा किते जिक्र नहीं कीता कृष्ण। पूरी गीता विच विदर दा कोई जिक्र नहीं। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी पढ़ो। पातशाह ने कहा, भाई लालो, गल्लां बातां विच ही मान नहीं हो सकदा। दुनिया इस साखी नूं भुल जाए, पर लह भाई लालो, तेनू अपने बराबर बिठाने, रहिंदी दुनिया तक लालो तेनू साडे नालों कोई वख नहीं कर सकेगा। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ो। पातशाह ने एक शब्द विच अनेकां बार नाम लेके बराबर बिठा लिया भाई लालो नूं। हजूर ने कहा, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसना करी ज्ञान वे लालो। पाप की जंजले काबलों ताया, जोरी मंगे दान बे लालो। एक बार नहीं, शर्म धर्म दो छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान बे लालो। काजियां बमना की गल थकी, अगद पड़े शैतान बे लालो। मुसलमानियां पढ़े कतेबा, कष्ट में करे खुदाए बे लालो। जास नती होर हिंदवानियां, ऐपी लिखे लाए बे लालो। खून के सोले गाविए नानक, रत का कुंगू पाए बे लालो। पातशाह ने कल्ला थ्योरी विच नहीं कहा कि नानक तिन कै संग साथ, प्रैक्टिकल विच कहा, नीचा अंदर नीच जात, नीची हुआत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां सू क्या रीस। इसलिए कलयुग दे अंदर श्री गुरु नानक साहब महाराज जी दा प्रकाश होया। फिर पातशाह ने एक बड़ी वड्डी किरपा की। समा मेरा समाप्त होने लग्या, ध्यान नाल सुने। पातशाह जिथे जिथे भी गए, किसी बंदे दा धर्म नहीं जी तब्दील कीता। अज लोकां अंदर एक जद्दोजहद रौला पिया होया। मैनूं इंज महसूस हुंदा जिवें असीं धर्मी है ही नहीं। अज रौला पिया, अपने वाल खिच लो लोकां नूं, किवें भी खिच्चिया जाए। लोग पैसे दे दे के अपने वाल रला लैंदे। इधर मैं परां बटाले तो के गुरदासपुर वाल वेखे, कई पिंडां विचों कहने जी पैसे दे के रला रहे हैं। साध संगत, ये कोई पार्टी बनाई जा रही है? श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने जदों मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, वो निर्मल पंथ कोई कंपीटिशन नहीं सी। गुरु नानक साहब कोई कंपीटिटर बन के नहीं आए कि मुकाबला करना जी गिनती बढ़ानी। जिदन महाराज के चरणों में पंडित चतुरदास देख के कहते, महाराज मैं तुहाडे चरणों तो बलिहार, मैनूं सिक्खी दे दे। पातशाह ने कहा, नहीं चतुरदास, तू ब्राह्मणी मत विच है, तेरे मत विच कोई किसी तरह की कमी नहीं। तेरा धर्म चंगा है, गायत्री का मंत्र पढ़दे ठीक है, गीता का पाठ करना चंगी गल है,
सवेरे शाम आरती करदा, व्रत रखदा, चंगी गल है, पर एक तेरे विच कमी है। तेरे अंदर दया, संतोख, जत ते सत चाहिए, जिहदे अंदर चार गुण ने, ओहदा जिहड़ा मर्जी धर्म होवे रब नूं मिलदा। पहरावा परमात्मा नहीं, कोई पहरावा रब तक नहीं लेके जा सकता, प्रेम ही सानू परमात्मा तक लेके जाता है। श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने पंडित चतुरदास का धर्म नहीं बदले। पंडित मौलवी इकट्ठे होकर कहते मक्के विच खुदा आ गया है, महाराज अपना चरणों का जोड़ा दे दो, असीं रख के पूजने। कई मौलवी कादियां ने कहा महाराज अपना धर्म दो सर। हजूर ने कहा तुहाडे इस्लाम विच कोई कमी नहीं, 5 वक्त दे नवाजी हो, नवाजी लो, रोजे रखते हो ठीक है, हज करते हो चंगी गल, पर 5 वक्त की नमाज पढ़न वालिया ए मुसलमान, उदन खुदा नूं तू चंगा लगेगा जिदन नमाज पढ़न वालिया तेरा दिल भी अंदरों मोम वर्गा नरम हो जाए। जे दिल विच कठोरता बैर है तू खुदा नूं चंगा नहीं लगेगा। मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर कीमल दिल ते धोवे। इहो गल पंडित नूं कही, धौल धर्म दया का पूत दया कपा, संतोख सूत जत गंडी सत वट, एओ जनेऊ जी का है ता पांडे कत। धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत, किसी दा धर्म नहीं बदलिया, लोकां नूं के अंदर धर्म पैदा कर। धर्म कोई पहरावा थोड़ी है, धर्म कोई लोकां दी गिनती नहीं, धर्म तुसीं किते भी बह के कमा सकते। बादशाह ने कहा सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप, ते अद्धा की है निर्मल कर। एक ते रब दा नाम जप, भावें राम कह, अल्लाह कह, वाहिगुरू कह, गोविंद कह, ते सज्जना धर्म उदों पूरा होना जदों 24 घंटियां विच काम निर्मल करे। बाहरों तू जिन्ना मर्जी पूजा पाठ करे, परत के गुआंढी दी जमीन दा बन्ना वड लैंदे, फिर तू बेईमान नहीं ते होर की। दूजे दी फसल वेख के सड़ जांदा है, बेईमान नहीं ते होर की। तू धर्मी किथों, तेरे अंदर संतोख चाहिए। एक सानू बीमारी है जी, आ हुण झाड़ निकलिया ना, तुसीं किलोआं विच पाया बीज, क्विंटलां विच कढ के मंडियां सिੱਟੇ, पर बंदे नूं बीमारी है, गुआंढी नूं जरूर पुछण जांदा किन्ना झाड़ निकलिया। जो 1 क्विंटल वध कह देना ते फिर मूंह वेखण वाला हुंदा भी मेरा घट क्यों निकलिया। नहीं साध संगत, जिन्ना साडे कर्मां विच सी रब ने सानू दित्ता, शुकराना करो। हजारां लोकां दी जमीन दरिया दे कंढे मर गई, वो बंदे भी सबर रख। इसलिए किसी नाल जैलसी ईर्खा नहीं, जो दिता है ओदे भाणे विच शुक्र करो। तुसीं धर्मी हो क्योंकि संतोख अंदर आ गया। दूजे दा दुख देख के दया अंदर आ जाए, तुसीं धर्मी हो। सिखां नूं एक मान होना चाहिए, ये आदत कदे ना छड्डिओ। वैसे एक मेरे अंदर दी विचार है, मेरा विश्वास है, जेड़ा सिख रोज बाणी दा पाठ करदे ना, जपजी साहब पढ़े, सुखमनी साहब पढ़े, गुरु दी बाणी दा पाठ करे रोज। जेड़ा सिख गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी पढ़दा, भावें थोड़ी पढ़े, ओदे अंदरों सिੱਖੀ दी महक कदे खत्म नहीं हो सकती। फसल बीज के कोई पानी ना लाए, फसलां मर जांदियां ने। सिख हो के बाणी ना पढ़े, सिੱਖੀ मर जाती है। ते जेड़ा बाणी पढ़दा है, ओदे अंदर सिੱਖੀ दा अपने आप गुण रहिंदा है। ते तुहानू मान है इस गल दा, किसे पासे कोई घटना घट जाए, सिख बड़े अंदरों दया नाल भरे ने। साध संगत, भुचाल भोपाल विच आउंदा है, ट्रक भर भर के सिख राशन दे पंजाब तो घल्लदे। कश्मीर विच भुचाल आया, पंजाब तो ट्रक भर भर के राशन। बिहार विच हड़ आया, कल्ला राशन नहीं, पर पहला की दवाइयां दे ट्रक भर भर के सिख लेके गए। इन्नी मंडी अंदर दया रब ने भरी है, ये विखावा नहीं, ये कुदरती दया है तुहाडे अंदर। गुरु नानक साहब दी दित्ती सिੱਖੀ है, ये जरूर रहेगी जेड़ा बाणी पढ़दा। ते साध संगत दूजे पासे वेखो, एक दिन मैं लाइव तो बेनती की, 2014 में जड़ियां संगतां हेमकुंड साहब गई, बारिश 7-8 दिन पैंदी रही, मिट्टी के पहाड़ डिग पे, 7000 सिख घिर गए उत्थे दर्शनां। उन्होंने वेख्या रस्ते बंद हो गए, सिख घिर गए, ते उत्थों दे लोकां पता की कीता, उत्तराखंड विच उत्थों दे रहन वाले 30 रुपए का परौंठा 150 रुपए का कर दिता। उन्होंने पता इन्होंने खाना नहीं तो भुखे मर। 60 रुपए लीटर वाला तेल 200-200 रुपए लीटर नूं बेचदे रहे। 20 रुपए की पानी की बोतल 200-200 रुपए की बेचण लग पे। ते साध संगत बलिहार उन्हां सिखां तो मैं वेखे 150 रुपए का परौंठा लेके कला अपने परिवार नूं नहीं खिलाया, जिन्हां कोल पैसे सी 150 का परौंठा खरीदिया, जिन्नियां नूं बुरकी बुरकी वंड के आई, सब नूं वंड। एक एक ग्राही खाओ जींदे रहो, पानी दी एक एक घुट पींदे रहे सारे।
साध संगत ये अंदर गुरु ने दया दी है, बहुते लोगों में नहीं, वो तो नजायज फायदा उठाते हैं, कोई फसिया तो रेट बढ़ा दे, पर गुरु का सिख बाणी पढ़ने वाले दे अंदर कुदरती दया। इसलिए जे तुसी पातशाह का यह पुरब शताब्दी पुरब मनाने सतगुरु जी के नाम उत्ते जुड़ के बैठे हो, मेरी कोई बेनती है, एक नंबर ते घर विच बाणी पढ़नी शुरू करो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੈਨੂੰ नहीं लगता ਤੁਹਾਡੇ ਚ कोई अनपढ़ बैठा होवे जी। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 10-12 ਕਲਾਸਾਂ ਸਭ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਨਪढ़ नहीं है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, कोई अनपढ़ नहीं, घट्टो घट जपजी साहब का पाठ करो। 24 मिनट लगते ने पाठ कर, जपजी साहब के पाठ नूं ना जे सहज ना करिए 24 मिनट लगते, 24 घंटिया में एक जपजी साहब का पाठ कर लो, मेरा विश्वास है तुहाडे 24 घंटिया की जिम्मेवारी गुरु नानक दी होएगी, बिल्कुल किसी पासे डोलण नहीं लगना। सो प्लीज जे ये समागम करा रहे हो, अज इन्ना क वादा करके जाओ कि आपां कल तो जपजी साहब का पाठ कर लोगे जी। हाथ खड़े करके जकारा छो, जपजी साहब करना कल, फसे नहीं तुसी छुट्टी जाओगे जपजी साहब करके, छो जकारा। बाद में कई फिर संगतां कहंदियां भाई साहब ने पौना घंटा कथा सुना के ते बाद च फसा लिया भी जपजी साहब रोज करना। सिखो फसाया नहीं, तुहानूं लाभ होने पता की बाणी पढ़न नाल दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भै सरसे पूरे गुर ते जानी। दुख रोग संताप मिटदे ने बाणी पढ़न दे नाल, सतगुरु किरपा करन। अगली गल, जिन्हां दी जमीन सड़क नाल लगदी, क्यों गवांढियां दी नहीं हुण आपां वड़दे, पता भी अगों ओ भी डट है, ओने भी फसा देना। हुण नवां काम सरदारां ने फड़ लिया, जिन्हां दी जमीन सड़क नाल लड़दी सड़क दी वड लो, फिर किहड़ा कोई रोकण वाले। जे पिंड दा सरपंच कहेगा भाई तो जगह जमीन सड़क दी वड्डी जाने, अगों कहंदे तैनूं पता है साडियां 13 वोटां ने, असीं पाईयां तैनूं, सानूं कहण लग। सरपंच चुप कर जांदा है ते ओनूं वेख के 2-4 होर वड लैंदे ने। तुहानूं बेनती है, ट्रालियां ट्रैक्टर गड्डियां मोटरसाइकिल तुहाडे लंघणे ने, तुहाडे ही बच्चे आउणे ने तुहाडे पिंडां नूं। जिन्हां दी सड़क नाल जमीन है ईमानदारी नाल छड्ड दिओ, कणक बीजण लग्गिआं वड्डिओ ना, जिन्नी गुरु ने दिती ओहदे विच बजाई करके वेखियो, गुरु नानक किन्नियां क बरकतां पाउणगे, तोतों संभियां नहीं जाणीआं। आपां सबर रखीए, सतगुर दा शुकराना करिए, नहीं ते साध संगत बेईमानी नाल 4 क्विंटल 4 बोरियां वध भी निकल आउणगीआं, कोई जी ढिल्ला मिठा हो जाए जी फिर किन्ने पैसे लग जाणगे। इसलिए आपां सबर संतोख रखना है, रब दा शुकराना करना है। साडी सड़क वड्डण नाल हो सकदा है कोई क्रॉस करन लगा किसी दी गड्डी पलट जाए, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल डिग जाए ते किन्ना नुकसान होंदा। सो प्लीज ईमानदारी नाल शताब्दी तां मनाई गई जे तुसीं आपां सारे बेईमानी छड्ड दित्ती। जमीन नहीं मिलनी सड़क दी, जिन्नी साडी बनदी ईमानदारी नाल बीजो, घरां विच बाणी पढ़ो, अपने बच्चों नूं सिक्खी नाल जोड़ो, होणगे ये लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले।